Assalamu alaikum everyone, Aksa Malik here. I hope you all are fine and doing well. Our today lecture topic is Universal Grammar, which is given by the father of modern linguist Noam Chomsky in 1960. As here written that universal grammar is a theory proposed by linguist Noam Chomsky that suggests that all humans have an innate biological capacity for language acquisition. According to Noam Chomsky, the capacity of acquiring a language is innate to all human beings. Further, according to this theory, there is a set of universal principles and rules that underlie the grammatical structure of all human languages. Means there are fixed rules, there are fixed principles, set of principles which exist in all languages, right? These principles are believed to be hardwired into the human brain. Those all principles are present in all languages, and those principles are hardwired into human brain. It means that those principles are those principles exist in human mind from their birth, right? Allowing children to acquire language rapidly and with relatively little explicit instruction. और यही रीज़न है कि जब एक जो बच्चा होता है उससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन की नीड नहीं है, उसे जस्ट जो है वो सोसाइटी से कुछ वर्ड्स अडॉप्ट करने होते हैं और उसके बाद जो है वो उसके अंदर जो है वो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है वो डेवलप हो जाता है. For instance, a child quickly get this rule that we use s or es with plural nouns. Like if there are more than one books, that then the child will say books, not book. So this example shows that there is a kind of internal mechanism in in human's mind, and the child use that mechanism and learn the language. Now, there is another thing in this theory which is LED, language acquisition device. As here written, that it's a term used in linguistics to describe the theoretical innate mental capacity that allows humans to acquire and develop language. Basically, lead is an imaginary concept, like it's not literally present in our mind, but yeah, it's a concept that there is a mechanism in our mind which has the capacity to acquire the language. So basically, lead is a device which has the capacity to acquire the language quickly. Now if you look at this diagram, so you can see that here's written language data and then LAD, language acquisition device. So basically, language data means the vocabulary which comes from the world or from the society. तो लैंग्वेज डेटा का मतलब है कि सोसाइटी के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो सब, एंड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मीन्स दैट द कैपेबिलिटी टू एक्वायर द लैंग्वेज. तो जब ये दोनों कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इट प्रोड्यूसेस लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और ग्रामर. It means that we all know that rules are already innate in our mind. Further, our mind has the capability to acquire the language, and that language means that words from the society. तो जब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कांटेक्ट में आती है सोसाइटी में जो वर्ड्स हैं उनके साथ, तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस लाइक जो है वो डेवलप होता है. दैट लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज कॉल्ड पर्टिकुलर ग्रामर अकॉर्डिंग टू Chomsky. As here written that Chomsky calls this kind of grammar as particular grammar. Particular grammar या linguistic competence से मतलब ये है कि जैसे अगर यूनिवर्सल ग्रामर है, राइट, तो यूनिवर्सल ग्रामर जो है उसके अंदर हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो कि यूनिवर्सल हैं, लेकिन पर्टिकुलर ग्रामर या लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि रूल्स एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के, राइट. लाइक फॉर सपोज एक बच्चा जो है वो सोसाइटी के साथ कांटेक्ट में आता है, ठीक है, और वो जो सोसाइटी है उसमें जो लैंग्वेज चल रही है दैट लैंग्वेज इज़ उर्दू, ठीक है. तो अब बच्चा जो लैंग्वेज सीखेगा वो होगी उर्दू लैंग्वेज, और जो कॉम्पिटेंस डेवलप होगा वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का डेवलप होगा, वो होगी उर्दू लैंग्वेज का कॉम्पिटेंस, राइट. मीन्स लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, बेसिकली लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज. किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग कहते हैं कि ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है.
ठीक है। तो जब एक बच्चा एक सोसाइटी के अंदर रह रहा है और उस सोसाइटी के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, उस सोसाइटी के अंदर जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, वो वर्ड्स एक बच्चा जो है वो एक्वायर करता है और एक लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है वो डेवलप करता है, जिसे पर्टिकुलर ग्रामर कहते हैं। लाइक वो जो ग्रामर प्रोड्यूस होगी ना, वो पर्टिकुलर ग्रामर होगी, लेकिन माइंड में जो ग्रामर थी ऑलरेडी एग्जिस्टेड, दैट ग्रामर इज यूनिवर्सल ग्रामर। लाइक फॉर सपोज लर्नर के माइंड में ऑलरेडी एग्जिस्टेड है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, पर इनकी सीक्वेंस क्या होगी, वो सीक्वेंस जो है वो सोसाइटी से मिलती है। वो सीक्वेंस तब मिलती है जब जो है वो कांटेक्ट में आती है लैंग्वेज डेटा के साथ। As here's written that in a general sense, language acquisition can be regarded as language growth. So now we know that we had the rules in our mind, right? Now when we are acquiring the words from the society, we can say that it's the growth of language because we had the rule in our minds, right? And now we are just acquiring the words from the society, so we can say obviously that it's the growth of growth of language, because it's indirectly the growth of that universal grammar. As further here's written, the growth of universal grammar becoming a particular language. It means that when universal grammar grows, it becomes a particular language. रूल्स ऑलरेडी हमारे माइंड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और जब हम सोसाइटी से वर्ड्स एक्वायर करते हैं तो वो हमारी लैंग्वेज की ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया हो रहा है, नहीं, बल्कि ग्रो कर रही है एक चीज़, बिकॉज रूल्स तो हमारे पास ऑलरेडी थे, राइट। और वो जो रूल्स थे, दोज रूल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रामर। और यूनिवर्सल ग्रामर के अंदर जब ग्रोथ होती है तो यूनिवर्सल ग्रामर चेंज इनटू अ पर्टिकुलर ग्रामर। पर्टिकुलर ग्रामर का मतलब वी ऑलरेडी डिस्कस दैट द कॉम्पिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का जब लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस माइंड में डिवेलप होता है तो दैट्स कॉल्ड अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, तो यूनिवर्सल ग्रामर की जब ग्रोथ होती है तो दैट चेंज इनटू पर्टिकुलर लैंग्वेज। Now further, in human cognition, it means that in human mind, there are innate principles, means the already existed rules of grammar, believed to be components of universal grammar. Exactly, जो rules हमारे mind के अंदर मौजूद हैं वो components होते हैं universal grammar के, right? And serve as basic foundation for particular grammars, right? Like यूनिवर्सल ग्रामर जो होती है वो एक बेसिक फाउंडेशन होती है पर्टिकुलर ग्रामर के लिए, बिकॉज पर्टिकुलर ग्रामर जो है वो यूनिवर्सल ग्रामर से बनती है, राइट। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि फॉर सपोज अगर हमें पता है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, हर लैंग्वेज के अंदर होता है, दैट्स यूनिवर्सल, सो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रामर। बट उसकी सीक्वेंस क्या होगी वो पता चलता है पर्टिकुलर ग्रामर के अंदर। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो यूनिवर्सल ग्रामर होती है वो फाउंडेशन होती है, यानी उसके अंदर रूल्स होते हैं, पर वो रूल्स की सीक्वेंस क्या होगी वो बताती है पर्टिकुलर ग्रामर। नाउ देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, प्रिंसिपल एंड पैरामीटर्स। Principle means universal grammar is the idea that all languages share some common rules or principles. Means, as we discussed, that there are some sort of rules which are innate to human mind. Those rules are also called principles. Now the second is parameters. Parameters are the specific settings or variations that each language has within those shared principles. It means that rules are innate to our mind, but when we fix those rules to a particular language, that's called parameter. As further here is written that in a technical sense, language acquisition means activating the innate principles. It means that when we acquire the language or when we acquire the words from the society, it means we are activating those principles, like we are activating the universal grammar, right? And then we are fixing that universal grammar to a particular language, as here is written that, and fixing the innate parameters as the child is exposed to a particular language.
इट मीन्स कि जब हम लोग लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं तो हम उन प्रिंसिपल्स को, उन रूल्स को, उस यूनिवर्सल ग्रामर को एक्टिवेट करते हैं एंड देन उसे फिक्स करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. As example is given that in English the parameter setting for subject verb object would be like I play cricket. मतलब इंग्लिश के अंदर जो पैरामीटर होगा या इंग्लिश के अंदर जो रूल है वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का. अब यूनिवर्सल ग्रामर के अंदर हमारे पास एक लाइक जो है ना वो रूल था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट पहले आ सकता है, वर्ब पहले आ सकता है. ठीक है, तो रूल का होना दैट्स प्रिंसिपल, बट उस रूल को देन फिक्स कर देना एज वी फिक्स दैट टू सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो इट इज़ कॉल्ड पैरामीटर. जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि आई प्ले क्रिकेट, but then here is written that however in Japanese the parameter setting could be I cricket play, right? The parameter could be subject object verb. ठीक है, तो जापानीज़ के अंदर वही जो यूनिवर्सल ग्रामर है जब हमने उसे पर्टिकुलर ग्रामर के अंदर चेंज किया और लाइक लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अंदर चेंज किया, तो दैट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब. ठीक है, तो प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल हैं, वो सेम रहते हैं, लाइक वो हर लाइक जो है ना ह्यूमन के माइंड के अंदर इंटरनल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन जो पैरामीटर्स होते हैं वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज होते रहते हैं, राइट? लाइक फॉर सपोज नाउन हो गया, नाउन वर्ब एडवर्ब, ये सब लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं. ठीक है, तो इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ इंटरनल टू आवर माइंड, राइट? लेकिन नाउन को किस लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर. So that was all about universal grammar. Now we have few limitations on this theory as well. So the first limitation comes from Heems, as here is written that for Heems linguistic competence simply means grammatical competence. So according to Heem, linguistic competence is simply means grammatical competence. Basically competence means knowledge, and when we say linguistic competence it means the knowledge of rules and regulation of a particular language. किसी भी particular language के की grammar अगर हमें आती है तो that's called linguistic competence, right? और उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है as compared to communicative competence. हीम्स के अकॉर्डिंग, हीम्स ये कहता है कि जिस तरीके से चॉम्स्की ने मेंशन किया है कि एक बच्चे के अंदर जो है वो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस डेवलप होता है, तो हीम्स के अकॉर्डिंग वो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की उतनी वैल्यू नहीं है. एज further here is written that and for communicative purposes grammatical utterances alone are never enough. In actual verbal communication appropriate language use often has greater prominence than grammaticality does. इसका मतलब है कि हीम्स के अकॉर्डिंग ग्रामर वगैरह की इतनी वैल्यू नहीं होती है जब हम लोग वर्बल कम्युनिकेट करते हैं. उस टाइम पर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की नीड होती है, मीन्स टू नो दैट यू नो हाउ टू कम्युनिकेट, व्हाट वी शुड से, व्हाट वी शुडंट से, इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए. लेकिन चॉम्स्की के अकॉर्डिंग एक जो चाइल्ड के अंदर जो है वो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस डेवलप होता है. और दूसरी बात ये कि चॉम्स्की डजंट वैल्यू सोसाइटी इन एक्वायरिंग अ लैंग्वेज, तो इट मीन्स के ही इग्नोर्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस. सेकेंडली हीम्स के ही इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में देयर इज़ अ कोट दैट मेटाफरिकली लैंग्वेज इज़ अ मिरर ऑफ द माइंड, मीन्स लैंग्वेज मिरर्स व्हाट इज़ इन आवर माइंड. और अगर चॉम्स्की के अकॉर्डिंग सोसाइटी इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर, तो इट मीन्स इन आवर माइंड वी डोंट हैव एनी कंसेप्ट रिलेटेड टू सोसाइटी, राइट? और एनी कंसेप्ट रिलेटेड टू द कल्चर नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. तो अगर लैंग्वेज माइंड को मिरर करती है तो इट मीन्स कि हमारी लैंग्वेज के अंदर भी किसी किस्म का कोई कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो शो नहीं होगा.
Then it lacks concrete evidence. It means that Chomsky hasn't provided any kind of concrete evidence for his universal grammar theory. Then as I already mentioned, that Chomsky ignores society and interaction in his theory. So these all are the limitations to universal grammar. So this was all about universal grammar, its components and limitations. Now if you still have any question, any query, you can ask in comment box.